Hello students, today I am going to explain you about the last topic of chapter 1, resources and development, and the topic is types of soil found in India. So the first is alluvial soil. This soil is widely spread soil and the entire northern plain are made of alluvial soil. This soil is deposited by three Himalayan river system and that are the Indus, Brahmaputra and the Ganga. This soil also extends in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. It is also found in eastern coastal plain such as in delta of Mahanadi, the Godavari, Krishna and Kaveri river. This soil is consists of sand, silt and clay. In the upper reaches of river valley, that is the near the place of break of slope, the soil are coarse. Such soils are common in Piedmont plains such as Dwars, Chaos and Tarai. Soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial soils means Bangar and new alluvial means Khadar. The Bangar soil has higher concentration of conker nodules than the Khadar. Khadar soil has more fine particles and is more fertile than the Bangar. Alluvial soils contains adequate proportion of potash, phosphoric acid, carbon compound and lime, which are ideal for growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crops. The regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated due to its fertility. तो स्टूडेंट्स, एल्यूवियल सॉइल वह सॉइल है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में लगभग इंडिया के 40% हिस्से में पाई जाती है और यह सॉइल हिमालय से बहने वाली तीन नदियों इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने से यह सॉइल बनती है। यह मिट्टी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। रिवर वैली के ऊपरी स्थान या फिर जहाँ ढाल खत्म होती है, मतलब वह निम्नतम क्षेत्र जो माउंटेन और हिल के बीच का होता है और जहाँ से नदी बहती है, वहाँ मिट्टी मोटी होती है और यह मिट्टी पिडमॉन्ट प्लेन्स में लगभग हर जगह पाई जाती है। तो बच्चों, पिडमॉन्ट प्लेन का मतलब है वह क्षेत्र जो माउंटेन और हिल्स के बिल्कुल इंड में, मतलब फुट में पाया जाता है और द्वार्स ईस्टर्न हिमालय के फुट हिल में पाए जाने वाला पिडमॉन्ट प्लेन्स जैसे कि असम में पाए जाने वाला, तराई वो मार्सी लैंड है जो नॉर्थ इंडिया जैसे कि यूपी में माउंटेन के फुट में पाए जाने वाला प्लेन और चौस पंजाब में पाए जाने वाला पिडमॉन्ट प्लेन्स होता है। सॉइल को उसके एज के अनुसार भी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल मतलब बांगर और न्यू एल्यूवियल सॉइल मतलब खादर में बांटा गया है। तो बांगर वह सॉइल है जिसमें कंकर की मात्रा खादर से अधिक होती है, जबकि इस सॉइल में बारीक पार्टिकल्स तथा उपजाऊपन खादर सॉइल के कंपेयर में कम पाया जाता है। इस सॉइल में पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड, कार्बन यौगिक तथा चूना पाया जाता है, जो जैसे कि गन्ना, चावल, गेहूं और दालों की फसलों के बढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। एल्यूवियल सॉइल्स जहाँ पाई जाती है वहाँ बहुत अधिक लोग रहते हैं तथा वहाँ गहन खेती की जाती है क्योंकि वहाँ ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल।
These soils are black in color and are known as ragur soil. It is ideal for the growth of cotton and is also known as cotton soil. Climatic condition along with parent rock material are the important factor for the formation of this soil. This soil is typical of the Deccan Trap region, spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava. It covers the plateau of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend in south-east direction along the Godavari and Krishna Valley. This soil is made of clay materials. They have much capacity to hold moisture. They are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. These soils are poor in phosphoric contents. They develop deep crack during hot weather which help in aeration of the soil. तो स्टूडेंट्स, ब्लैक सॉइल काले रंग की होती है और इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं। यह मिट्टी कॉटन की फसल के लिए बहुत अच्छी होने के कारण कॉटन सॉइल के नाम से भी जानी जाती है और कई फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट मतलब ओरिजिनल रॉक के मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके कारण यह सॉइल बनती है। यह मिट्टी डेक्कन ट्रैप रीजन में मतलब डेक्कन ट्रैप वह क्षेत्र है जो डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट का है और जिसका निर्माण लावा की कई गुना परतों के सॉलिडिफिकेशन से हुआ है, वहां पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ साउथ ईस्ट दिशा में गोदावरी और कृष्णा वैली तक पाई जाती है। यह मिट्टी क्लेई मटेरियल्स मतलब बहुत बारीक मिट्टी के पार्टिकल से बनी होती है और इसमें नमी को बनाए रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इस सॉइल में सॉइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इस सॉइल में फास्फोरस बहुत कम पाया जाता है और यह मिट्टी गर्मी के सीजन में चटक जाती है, जिससे सॉइल के एरेशन में मतलब वह प्रक्रिया जिसमें एयर वाटर के साथ क्लोज कांटेक्ट में आ जाती है, इस प्रोसेस को सहायता मिलती है। सो द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल्स डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन igneous rocks in the area of low rainfall. In the eastern and southern parts of Deccan Plateau, yellow and red soil are found in part of Orissa, Chhattisgarh, southern part of Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of Western Ghats. These soil develops reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. It looks yellow when it occur in hydrated form. तो बच्चों, तीसरी तरह की सॉइल है रेड और येलो सॉइल। रेड सॉइल वहाँ पाई जाती है जहाँ इग्नियस रॉक्स होती है और कम रेनफॉल होती है। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न तथा सदर्न पार्ट में विशेषकर यह मिट्टी पाई जाती है। येलो और रेड सॉइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी हिस्से और साथ साथ वेस्टर्न घाट के पिडमॉन्ट जोन मतलब पर्वत के निचले वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह सॉइल आयरन के एंशियंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक से डिफ्यूजन मतलब प्रसार के कारण लाल रंग की होती है और यह मिट्टी हाइड्रेटेड मतलब जल से मिक्स हो जाने के बाद पीले रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर
which means brick. It is formed by weathering of laterite rock. It develops in the areas with high temperature and heavy rainfall. This is the result of intense leaching due to heavy rain. Lime and silica are leached out of the rocks. Humus content of the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature. That's why laterite soil are generally deficient in the plant nutrients. Laterite soil are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. These soils are mainly found in Karnataka, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly areas of Odisha, some part of West Bengal and Assam. After adopting appropriate soil conservation technique, especially in areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are most suitable for crops like केशव nuts. तो बच्चों लेटराइट सॉइल को एक लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है जिसका मतलब है ईट। यह मिट्टी लेटराइट चट्टानों के वेदरिंग मतलब क्षय होने से बनती है और यह वहां पाई जाती है जहां बहुत अधिक तापमान तथा उच्च वर्षा होती है। अब क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण भारी बारिश के कारण होता है, इसलिए लैटराइट चट्टानों से चूना और सिलिका घुलकर बह जाता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है क्योंकि इन क्षेत्रों में टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण ज़्यादातर डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लैटराइट मिट्टी में प्लांट न्यूट्रिशंस का अभाव होता है। यह मिट्टी खेती के लिए पर्याप्त खाद तथा फर्टिलाइजर्स यूज करने के बाद उपयुक्त हो जाती है। यह सॉइल मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों तथा असम में पाई जाती है। कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी चाय और कॉफ़ी की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल में पाई जाने वाली रेड लैटराइट सॉइल केशव नट की फसल के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. They are generally sandy in texture and saline in nature. The arid soil lacks humus and moisture. Arid soils are found in places with dry climate, high temperature and where evaporation is faster. After proper irrigation, these soil become cultivable as has been seen in the case of Western Rajasthan. The lower horizon of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downward. The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. Arid soil रेड से ब्राउन अलग अलग रंगों में पाई जाती है। ये सॉइल दिखने में रेतीली तथा नेचर से सैलाइन होती है। इस सॉइल में ह्यूमस तथा मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम होती है। एरिड सॉइल वहाँ पाई जाती है जहाँ क्लाइमेट ड्राई और तापमान बहुत अधिक होता है, जिससे सॉइल से एवोपरेशन बहुत तेजी से होता है। उपयुक्त रूप से सिंचाई करने के बाद यह मिट्टी खेती योग्य बन जाती है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। इस सॉइल के निचली सतह पर
कंकर पाए जाते हैं। इस सॉइल में कैल्शियम के कण नीचे बैठ जाने के कारण मिट्टी के निचले सतह की कंकर की परत पानी को अंदर आने से रोकती है। एंड द लास्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। These soils are found in hilly and mountainous areas where sufficient rainforest are available. The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley sides and coarse grained in upper slopes. In the snow-covered areas of Himalayas, these soil experience denudation and are acidic with low humus content. The soil found in lower part of the valley, particularly on the river terraces and alluvial plains, are fertile. तो बच्चों, फॉरेस्ट सॉइल वहाँ पाई जाती है जहाँ पर्याप्त रूप से हिल तथा माउंटेन्स होते हैं और वहाँ रेन फॉरेस्ट पाई जाते हैं। इस मिट्टी की बनावट माउंटेन्स इन्वायरमेंट के अनुसार जहाँ जहाँ ये पाई जाती है अलग अलग तरह की होती है। ये लोमी और सिल्टी वैली साइड्स मतलब माउंटेन्स के फुट हिल्स में और माउंटेन के ऊपरी रीजन्स में यह मिट्टी मोटी व दानेदार होती है। हिमालय के बर्फ से ढके हुए रीजन्स में यह सॉइल डेन्यूडेशन मतलब मिट्टी स्नो के मेल्ट होने की प्रक्रिया के साथ बहती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम तथा एसिडिक प्रवृत्ति पाई जाती है। यह मिट्टी जो वैली के निचले क्षेत्र विशेषकर जहाँ पे नदियाँ किसी सरफेस को काटती हुई बहती है या फिर जहाँ एलुवियल फैंस मतलब वह ट्रायंगुलर क्षेत्र जो वाटर ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स जिसे हम एलुवियम कहते हैं इसके जमा होने से बनता है बहुत अधिक उपजाऊ होती है।